were already completed. First was introduction, in which we tried to understand what was Vijayanagara and why Vijayanagara is called as a city of victory. Second point, हमने ये भी देखा that how Vijayanagar was reinvented. And for the reinvention of Vijayanagar, Hampi was discovered. What was Hampi? वो हमने पढ़ा. And how Hampi was discovered, वो हमने पढ़ा. Who started its initial research and how that initial research moved on further. ये भी हमने पढ़ा. After that, third topic was Rayas, Nayakas and Sultans. Rayas, Nayakas and Sultans का मतलब होता है कि यानी कि who were the rulers, who were the reigners of the empire named as Vijayanagar Empire. तो उनके बारे में हमने पढ़ा. Actually, who were Rayas वो हमने पढ़ा, who were Nayakas वो हमने पढ़ा, and who were Sultans ये चल ही रहा. In introduction, then I think in subtopic of this topic we came on to the kings and traders related to the empire. Okay. Then after that, other players. Then after that, point number B, the apogee and decline of the empire. ये भी हमने पढ़ा related to Vijayanagar Empire. Then after that, next was the Rayas and Nayakas. We studied about bonding in the Rayas and Nayakas. Actually, what were the bond? Nayakas were military chiefs of the Rayas, and the Rayas were the Vijayanagar rulers. ये आपको पता है. Then when we were studying about the Rayas and the Nayakas, in that, first of all, we took introduction of it, that who were Nayakas and what was the bond or what was the relation or what was the connection of the Nayakas with the Rayas. ये हमने पढ़ा. Then second point was major innovation in the empire related to the Nayakas. ठीक है. उस एम्पायर में नायकास से जुड़कर ऐसा क्या चेंज आया, ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसा क्या इनोवेशन आया, भी came on. In which first was अमर नायका सिस्टम. पढ़ लेते. तो पॉइंट बी, हाँ ये भी हम पढ़ चुके थे. अमर नायका सिस्टम पढ़ चुके थे. Then we came on to study about the features of Amar Nayakas. That they were military commanders, they used to collect revenues, ठीक है ना, the related contingents, thereby were having a task business of providing the kings of Vijayanagar and effective fighting forces. ये सब हम पढ़ चुके. And some parts of the revenue was also invested upon the maintenance of temples and irrigation work. और उसी में से वो अपना खर्चा भी निकाल लेते. Then next point was offerings. Offerings क्या होती है ये पर. Now we will try to understand what were the offerings which Nayakas used to offer in front of their king. राजा के सामने नायकास क्या ऑफर करते थे. First point, a tribute to the king by personally appearing in the king's court. सबसे पहली बात, फर्स्ट लॉ, कि जो भी ट्रिब्यूट देनी होती थी, नायकास अपने रूलर्स यानी कि रायास को ट्रिब्यूट देने के लिए पर्सनली राजा के दरबार में पेश होते थे, यानी कि प्रस्तुत होते थे, यानी कि प्रेजेंट होते थे. Second point, kings often practiced their control over them by transferring them from one place to another. और राजा यानी कि किंग्स नॉर्मली नायकास से क्या रिलेशन रखते थे. सिंपल, किंग्स यूज्ड टू कंसिडर दैट द नायकास रिलेटेड टू देयर कोर्ट या रिलेटेड टू देयर आर्मी या रिलेटेड टू देयर फोर्सेस या रिलेटेड टू हिज रिजाइन are the most loyal entities, are the most loyal persons a king can have. Therefore, राजा उन नायक्स को अपना कंट्रोल जगह जगह प्रैक्टिस कराने की जगह जगह भेजता रहता था. आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां तो परसों वहां. यानी कि simple kings often used to practice their control, or we can say kings often used to expand their control over them. Over whom? Over the territories, along with, मैं देखो इफेक्ट तो टेरिटरीज पर पैदा करना था और प्रैक्टिस किस पर करनी थी उस इफेक्ट को पैदा करने के लिए, ओवर द नायकास. हाउ? बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह उनको टिकने ही नहीं देते थे. इसके दो कारण थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि किंग्स अपना एक्सपेंशन चाहते थे. सेकंड, वो चाहते नहीं थे कि कोई भी कमांडर एक जगह हो और गुटबाजी करे और ग्रुप बनाने का उसको मौका मिले. उसका फोकस एक था दैट दे आर लॉयल टू द किंग एंड दे शुड ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द किंग. और उसको ऑर्डर्स की आदत होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, अ नोटेबल फैक्ट. द नायकास एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम ड्यूरिंग द 17th century. एज अ रिजल्ट फिर क्या हुआ? हर चीज हर वक्त हर समय एक सा नहीं रहता. वक्त बदलता है, समय बदलता है, टाइम ऑलवेज चेंजेस. देयरफॉर यहाँ भी वही हुआ. नायकास ने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश कर लिए, क्योंकि रायास को अगर लग रहा था that नायकास आर वेरी लॉयल टू रायास, ऑब्वियसली दे वर लॉयल टू द रायास. बट हर चीज परफेक्ट नहीं होती.
एक तरफ रायाज ने अगर नायकाज की लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए उनको ऑर्डर प्रोन बना रखा था, तो दूसरी तरफ कुछ फैसिलिटीज और फैसिलिटेशन और वर्क इस हद तक फ्री करके उनको दे रखे थे कि उनको आइडिया लग गया दैट वी कैन आल्सो बी रूलर समटाइम। एंड एज अ रिजल्ट वो जब टाइम आया नियर बाय ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, नायकाज स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर इंडिपेंडेंट किंगडम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड एज अ रिजल्ट 17वीं शताब्दी तक आते आते नायकाज के एक नहीं कई छोटे छोटे स्वतंत्र स्वतंत्र राज्य उन्होंने अपने स्टैब्लिश कर लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स उन्होंने स्टैब्लिश कर लिए, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल इंपेरियल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द एम्पायर, जिसकी वजह से ओवरऑल फेडरल स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल, यानी कि मैं कहूं अगर यूनिटरी नेचर जो था विजयनगर एम्पायर का, वो खत्म हो गया। बिकॉज ऑब्वियसली यूनिटरी नेचर हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देयर वर मैनी टेरिटरीज और देयर वर मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स, या देयर यूज्ड टू बी मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स व्हिच यूज्ड टू कम अंडर विजयनगर एम्पायर, but the complete empire used to be run by a center regime, yani ki it was unitary in nature also, and it was unitary in terms of government also, and it was unitary in terms of practice, matlab authority practiced by the government also। ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड जो अथॉरिटी थी वो टूट गई। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली छोटे छोटे किंगडम्स बन गए। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई सबका अपना अपना रिजाइम हो गया। द होल रिजाइम एज अ होल ब्रोक डाउन, एंड दैट रिजाइम broke down into smaller split pieces in terms of small kingdoms ruled by different नायकाज। ठीक है, तो ये आपने रायाज और नायकाज के बीच में रिलेशन पढ़ा। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ टॉपिक which was विजयनगर कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। ये भी शायद हम पढ़ चुके थे। हाँ, इसके बारे में मेन फीचर हम ले चुके थे, वाटर रिसोर्सेज पे हम थे, जिसमें कि हम कमलापुरम टैंक पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हीरिया कैनाल पढ़ते हैं। हीरिया कैनाल क्या थी? What was actually a Hiria canal? A canal driving water from a dam across the Tungabhadra, irrigating the cultivated valley। ध्यान से सुनिएगा, तुंगभद्रा नदी जिसके वर्जिश पर पूरा नॉर्थ बसा हुआ था विजयनगर एम्पायर का, उस नदी पर क्या बना हुआ था? एक डैम बना हुआ था, जिसको हिंदी में हम बांध बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ बांध इन हिंदी। उस पर डैम बना हुआ था और उसी डैम से एक कैनाल कनेक्टेड थी, यानी कि नहर निकली हुई, और वो नहर पूरी की पूरी वैली में निकलती थी। यानी कि वो नहर अगर पूरी वैली में निकल रही है तो वैली के उधर पार्ट के, वैली के इधर पार्ट के, यानी कि ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैनाल, दैट कैनाल यूज्ड टू इरिगेट ऑल द फील्ड्स प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैनाल। और फिर सारी फील्ड्स को इरिगेट करते हुए वो कैनाल डीप एंटर इनटू द किंगडम घुसती थी, रॉयल सेंटर पे जाके खत्म होती थी, यानी कि इन द सेंटर ऑफ द किंगडम ऑफ द विजयनगर। या फिर आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो ऐसा रॉयल सेंटर बताया नहीं गया कि वो रॉयल सेंटर जाती थी, तो इसको हम बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि वो कल्टीवेटेड वैली को, मतलब वैली को कल्टीवेट करने के पर्पज से सारी फील्ड्स को इरिगेट करते हुए कैनाल चलती थी। और फिर देन इट कैनाल ही होती थी जिस कैनाल के कारण किंगडम के अंदर दो आप कह सकते हैं बिगेस्ट एसेट्स, वन वाज सेक्रेड सेंटर एंड सेकंड वाज अर्बन कोर, यानी कि जो शहरी भाग था विजयनगर का और जो उसका सेक्रेड सेंटर था। सेक्रेड सेंटर समझते हैं आप? पवित्र केंद्र, यानी कि पूजा स्थल, ये सब जहाँ पे आते हैं, इन दोनों को सेपरेट करने वाली ही कैनाल थी। और ये दोनों सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर, ये दोनों ही किसने बनाया था? राजाओं ने बनाया था। कौन सी डायनेस्टी के? संगमा डायनेस्टी के। यानी कि सिंपल इट दिस कैनाल वाज ड्रिवन बाय, एक्चुअली दिस कैनाल यूज्ड टू ड्राइव वाटर फ्रॉम अ डैम, यानी कि डैम से पानी उठाती थी। which dam? The dam which used to come across the Tungabhadra river for what? For irrigating the cultivated valley। ठीक है, so as to separate the sacred center from the urban core, and it was built by the kings of the Sangama dynasty। Simple। नेक्स्ट इज फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। अब हम पूरे महल की रचना पर आते हैं। ठीक है, जो किला था पूरा विजयनगर एम्पायर का, जो पूरा पहले होता था ना कि एक पूरा किला और उसके अंदर ही पूरा शहर बसा हुआ होता था, बट विजयनगर एम्पायर की थोड़ी सी रूपरेखा डिफरेंट थी। व्हाट वाज एक्चुअली? तो दो चीजों पर आएंगे। एक तो हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो फोर्टिफिकेशन सिस्टम था वो क्या था, यानी कि किलेबंदी कैसी थी, एंड सेकंड उनकी रोड्स वोड सड़कें वड़कें कैसी थी। फर्स्ट पॉइंट, 15th सेंचुरी, अब्दुल रजाक, 15वीं शताब्दी की बात है। अब्दुल रजाक से शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हु वाज अब्दुल रजाक? ही वाज एक्चुअली एन एम्बेसडर। एम्बेसडर समझते हैं ना, दूत, राजदूत, दूत।
या राजदूत मान लो। He was actually an ambassador sent by the ruler of Persia. पर्शिया मतलब आज के दौर जिसको हम ईरान कहते हैं, टू कैलिकट, और कैलिकट इंडिया में आता है, जिसको प्रेजेंट डे में हम कोझिकोड कहते हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था। तो इन सिंपल टर्म्स 15th सेंचुरी में अब्दुल रज़ाक, who was actually an ambassador of the Persian kingdom, he was sent by the ruler of Persia to Calicut. And what is Calicut? Present day Kozhikode. ठीक है। And when he came to Calicut, after visiting Calicut, he came here, and after coming here, he witnessed some of the very impressive forms of architecture. Second most important point is, sir, क्या? So first of all, he saw the method of fortification here. किलेबंदी का जो तरीका था यहाँ पे, उस किलेबंदी को तरीके को कर वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। यार ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं पूरे में। Mentioned about the 7 lines of forts. अब उसने ऐसा क्या देख लिया था? Actually, the system of fortification was actually really distinct. जो उनकी बात सही थी, that he had never seen before in his life, और आगे भी कभी उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने यहाँ के fortification के system को एक नाम दिया था। He ignited with a quote, या he ignited with a phrase that was 7 lines of forts encircling the whole city as well as its agricultural hinterlands and forests. मतलब समझते हो आप? यानी कि किलेबंदी में 7 बाउंड्रीज है, और उन 7 बाउंड्रीज के अंदर सब आ जाता है। कंप्लीट एम्पायर्स कम्स विद इन दो 7 लाइंस ऑफ ऑल द फोर्ट्स, जिसमें पूरा शहर भी आ जाता है, जिसमें सारे खेती करने वाले बगान और खेत भी आ जाते हैं, और जिसमें सारे जंगल भी आ जाते हैं। आपने कभी ऐसा एम्पायर सुना नहीं होगा, सपोज, कि जहाँ पे जंगल भी आते हैं, यानी कि जानवर भी अंदर ही रखे जाते हैं। एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट लाइफ वाज आल्सो यूज्ड टू कंसीव इनटू दैट एम्पायर। सब कुछ उसके अंदर आ जाता था। तो अब इन 7 लाइंस ऑफ फोर्ट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द आउटर वॉल, सबसे बाहरी जो दीवार थी उस एम्पायर, समझ रहे हैं? सराउंडेड द सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर वॉल थी वो सिटी के सराउंडिंग्स में थी, यानी कि सिटी की बाउंड्री में आउटर वॉल थी, और उस आउटर वॉल के अंदर सिटी थी। सिटी मतलब अर्बन कोर कह सकते हैं, अर्बन जोन कह सकते हैं, जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे मार्केट्स एंड ऑल सब होते थे। सेकंड पॉइंट, मैसिव मेसोनरी स्टोन मेड पार्ट। मेसोनरी का मतलब क्या होता है? पत्थर के बने हुए आर्टिफैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन वाज स्लाइटली टेपर्ड, लेस थिकनेस एट द एंड। दूसरी बात, ज्यादातर चीजें जो थी पत्थर की बनी हुई होती थी, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टेपर करके बनी हुई होती। स्टेपर का मतलब समझते हैं आप? कि बीच में से तो चाहे उसको जो भी शेप दो, लेकिन उसके एंड जो है, चाहे वो एंड लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अप हो या लो हो, दोनों एंड्स को बहुत ही कम थिक रखा जाता था, पतला रखा जाता था। बीच में उनको चाहे भारी करो, मतलब पत्थर को, ऐसी चीजें ज्यादा थी जो एक तो महंगे पत्थर की बनी हुई थी, दूसरी बात महंगे पत्थर को भी इस तरीके से कार्व किया जाता था कि उनके जो दोनों एंड्स हैं, फाइनल एंड्स, वो फाइनल एंड्स दोनों लेस थिकनेस के हों और मोर थिनर हो, जिससे कि कहीं पर भी अगर हम उनको सेट कर सकें तो वो इजीली सेट हो सके। सेकंड, थर्ड पॉइंट, नो मोटार और सीमेंट यूज। भाई मोटार मतलब समझते हो आप? डामर। एंड सीमेंट मतलब आप समझते हो? तो ये दोनों ही चीजें यूज होने का सवाल ही नहीं होता। प्योर पत्थर, वो भी प्योर कारीगरी के साथ और शिल्पकारी के साथ। नेक्स्ट वर्क, स्टोन ब्लॉक। पत्थर के कई जो है संगठित वो थे, ब्लॉक्स थे, यानी कि वेरी एक्यूमुलेटेड ब्लॉक्स वर मेड यूज्ड स्टोन। और साथ में उन स्टोन ब्लॉक्स का जो शेप हुआ करता था, उसका शेप भी बड़ा ही वेजी होता था। वेजी मतलब अकॉर्डिंग टू द सेटिंग, जिससे कि जहां पर भी उस शेप का हमने कोई ब्लॉक बनाया है, उसको उस जगह पर सेट करने के लिए, जिससे वो अपनी जगह को पकड़ कर रहे, टू होल्ड इट्स प्लेस, इट यूज्ड टू बी कट इनटू अ वेज फॉर्म। अंडरस्टूड? ये तो आउटर वॉल समझ लिया आपने। अब आप समझ ले बाहर की दीवार कितनी मजबूत। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू इनर वॉल्स। अब अंदर की दीवारों पर आते हैं। बाहर की दीवार होगी, पूरी सिटी को उसने कवर कर रखा है। अर्थ पैक्ड विद रबल, ब्रोकन स्टोन ऑफ इरेगुलर शेप यूज्ड एज अ पिलर। ध्यान से सोचिएगा, इनर वॉल्स की जो दीवारें थी, मतलब हम सिंपल कहें, उन दीवारों की जो हम कहें सही बात करें, तो उन दीवारों के अंदर ऐसा क्या था? उन दीवारों के, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर मैसिव मेसोनरी, भारी पत्थर टुकड़ों में, मगर बड़े बड़े टुकड़ों में दीवारों में लगे होते थे। इनर वॉल्स क्या थी? इनर वॉल्स आउटर वॉल्स के मुकाबले उनका साइज वाज टू बी डिफरेंट, शेप वाज टू बी डिफरेंट, structure and surface area was to be different, along with height and length was to be different, along with concreteness of those walls was used to be different.
जिसकी वजह से उन दीवारों के अंदर भी एक्चुअली पत्थर टूटे हुए ही होते थे, लेकिन वो पत्थर तोड़कर एक तरीके से बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनको सेट किया गया था उन दीवारों में। समझ गए? जिसको हम रबल बोलते हैं। रबल कैन एक्चुअली बी टर्म्ड एज़ ब्रोकन स्टोन ऑफ इर्रेगुलर शेप यूज्ड एज़ अ फिलर। आप कहोगे मतलब सर? मतलब सिंपली दीवार बना दी आपने। किसकी बना दी? मिट्टी की बना दी, चाहे जिसकी भी बना दी, या जो भी आपके पास मटेरियल है। उसके बाद बीच में जो उनकी जगह रह जाती थी ना उन दीवारों में छोटी-छोटी, उनको वो रबल से फिल करते थे। रबल मतलब छोटे-छोटे पत्थरों से फिल करते थे। तो वो दीवार इतनी मजबूत हो जाती थी कि आप सोच भी नहीं सकते, वो हिल भी नहीं पाएगी। तो सिस्टम था। Next was square or rectangular bastions built at an angle to the wall lining projected outward. अब आप समझिए कि जो अंदर का पार्ट होता था, जिसको हम कह सकते हैं कि किले का मेन पार्ट, जहाँ से एक्चुअली पूरा किंगडम स्टार्ट होता है, जहाँ से राजा तक पहुँचने की जर्नी स्टार्ट होती है। वो जो एरिया आता था, वो या तो स्क्वायर फॉर्म में होता था या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता था। और वो जो पूरे दोनों एरियाज़ होते थे, वो एरियाज़ भी इस तरीके से इस एंगल पे कट कट किए जाते थे जिससे कि वॉल लाइनिंग के अलाइनमेंट में हो। यानी कि आउटर वॉल, फिर इनर वॉल के अंदर हमें क्या शेप रखना है बेस्टन का, मतलब इट शुड बी स्क्वायर और इट शुड बी रेक्टेंगुलर। दैट वाज कंप्लीटली डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इनर वॉल लाइनिंग। उन लाइनिंग्स का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए, तो उन लाइनिंग्स के हिसाब से एक सूटेबल एंगल पे ही पर्टिकुलर शेप के बेस्टियंस बनाए जाते थे। और कोई एक तो बेस्टियन होता नहीं था, इतना बड़ा किला है भाई, यहाँ कहीं स्क्वायर, यहाँ पर इंडर वॉल्स की अलाइनमेंट पर अगर एंगल 45 डिग्री बैठ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर ठीक रहेगा, वहाँ पे 60 डिग्री बैठ रहा है तो वहाँ रेक्टेंगुलर ठीक रहेगा। इतना कॉन्क्रीट और इतना टेक्निकल लेकर वो चीजों को चलते थे। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या था? मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ये था कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, यानी कि खेती करने वाली जो जमीनें थी, जो खेत थे, वो सब इनर वॉल्स के अंदर आते थे। आउटर वॉल्स के अंदर तो नहीं आते थे, बट इनर वॉल्स के अंदर आते थे। सोचिए। So for today, it's complete. Tomorrow, I think I will make you understand as per different references given by Shriman Abdul Razzaq साहब, कि अब्दुल रज़ाक ने अपनी इन बातों को समझाने के लिए रेफरेंसेस भी दिए कि भाई what I am talking about outer walls was true, what I am talking about inner walls was true, and what I am talking about the shapes and structures of the bastions which were built at an angle to the wall lining projected outwards. Wall lining तो obviously projected outwards ही थी. So that was also true. For that, I will give you references which after which you can understand it easily. So I think all the students are